पतंजलि योगपीठ तंत्र के दोनों पूर्वदा परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में सादर प्रणाम। I welcome to all viewers for your connection to this dignified platform of University of Patanjali. Dear friends, I have been advised to speak in the topic titled Integral Coping with COVID-19. What may be the integrative, preventive and therapeutic measures to cope with COVID-19 infection? In my deliberation, I will be covering the prevalence, etiology, transmission route, signs and symptoms, pathophysiology and complications of COVID-19, followed by the integrative, preventive and therapeutic measures as reported by latest research findings. Dear friends, just I was looking at some noted journals like Nature Reviews Immunology, the Lancet Hematology, the Lancet Neurology, the Lancet Psychiatry, JAMA Open Network, British Medical Journal, New England Journal of Medicine. I'll be sharing the fact and figures extracted after reviewing these noted and quoted journals of the world. Let me start my discussion from the etiology. If we look at the cause of the COVID-19, it is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. And this is popularly known as coronavirus disease 2019, and briefly we write it COVID-19. It was first identified in December in 2019 in the Wuhan city of the China, and later on it was declared as pandemic by WHO in 11 March 2020. WHO has also declared the public health emergency of international concern due to the ongoing attack of this pandemic. If we look at the established transmission route of COVID-19, droplet infection and person-to-person contact are two modes which are most accepted ones. Some of the research claim that fecal oral transmission route may be possible for the spread of COVID-19, there is no scientific research to confirm this point. तो अभी तक आप देखेंगे रिसर्च में तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट ही कोविड-19 का ट्रांसमिशन मार्ग है, और ये फीकल से या ओरल रूट से भी फैलता है, इसके बारे में पुष्टि होना बाकी है। दोस्तों, मैं थोड़ा इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेता हूँ। If you look at the sign and symptoms of COVID-19, once the SARS-CoV-2 enters into human body, it takes 4 to 5 days for incubation. And after 4 to 5 days, if the person is having fragile immune system, is not able to cope with this infection, it starts to show the clinical symptoms just like fever, dry cough, difficulty in breathing, muscle and joint pain, headaches, dizziness, diarrhea, nausea and sometimes coughing of blood. और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में ये सारे संकेत और लक्षण पाए जाते हों, और इसमें मुख्य रूप से बुखार, सूखी खांसी, श्वास प्रश्वास में कठिनाई और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द जैसे संकेत और लक्षण लगभग सभी में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं जोड़ दे के बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति में ही ये सिम्टम्स दिखाई पड़ता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, कंप्रोमाइज्ड है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें 2-3 बार छींक आती है और सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण से आदमी इसको आसानी से
झेल लेता है, इसका शमन कर लेता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में इस महामारी के वजह से 7.8 मिलियन लोग ग्रसित हैं। लगभग 0.43 मिलियन लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। अगर आप भारतीय परिवेश में देखना चाहते हैं तो आज के मैं गवर्नमेंट के साइट में देख रहा था, लगभग इंडिया में 0.14 मिलियन एक्टिव केस हैं और लगभग 10,000 लोगों ने हमारे देश में भी जान गंवाया है। तो इस महामारी से अछूता रहना तो मुश्किल है, लेकिन इस महामारी से के संपर्क में आने के बाद भी इसको झेल लेना, अपने आप को बचाना महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने अपने टॉपिक का नाम दिया था कोपिंग विद कोविड-19। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो 4 से 5 दिन इसकी इंक्यूबेशन है। फिर मैंने कुछ इसके संकेत और लक्षण के बारे में आपको बताया। तो जब व्यक्ति में इसके क्लिनिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं 5-6 दिन के, उसके 5-6 दिन के पश्चात 5-6 दिन के अंदर में इसकी सीवियरिटी, इंटेंसिटी पीक में चला जाता है और लगभग ये सिम्टम मैनिफेस्टेशन के 8 से 9 दिन में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे स्थिति पैदा हो जाती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को आप सामान्य भाषा में ऐसा समझना चाहिए, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड दैट कॉजेज द decreased supply of oxygen in the blood, and if the level of oxygen is decreases in the blood stream, that may manifest in the renal, hepatic and cardiac failure too। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो आज तक रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, उनमें फैटेलिटी ज़्यादा होती है और मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। आज तक की जो रिसर्च हुई है इस बात को पुष्टि करती है। लेट मी रिपीट वंस मोर, इफ समवन इज हाइपरटेंसिव, हियर शी इज वेरी प्रोन टू द फैटल कंडीशन ऑफ द कोविड-19 एंड वेरी प्रोन टू द डेथ। और इसके अतिरिक्त जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि जो लोगों को कोविड-19 हो जाता है उसमें से लगभग 70% लोग यही एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से मरते हैं और उसमें लगभग 28% लोग, आई मीन द 28% ऑफ द पीपल डाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनिन स्टॉर्म एंड सिम्टम्स ऑफ सेप्सिस। एक पॉज सा बन जाता है, सामान्य भाषा में आपको ऐसा समझना चाहिए। साइटोकाइनिन डैमेज होते हैं और जो अभी लेटेस्ट रिसर्च अभी आई है, रिसेंट अपडेट आई है, वो ये कहती है कि कोएगुलोपैथी, सिस्टमिक इंजरी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर्स आर ऑल्सो कोविड-19 इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन टू कॉज द ह्यूमन डेथ। यानी शरीर में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाना, डी डायमर्स का बढ़ जाना और एक कोएगुलोपैथी की कंडीशन आना भी ये कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन का एक सीवियर सिग्नल है जिसकी वजह से लोग मरते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मेल और फीमेल पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो मेल की फैटेलिटी रेट ज़्यादा है। जस्ट लुकिंग एट द रिसर्च डेटा, द फैटेलिटी परसेंटेज इन मेल्स इज 2.8% and that is 1.7% in females because angiotensin converting enzyme 2 is located in X chromosome having alleles that resist COVID-19। यानी X क्रोमोसोम फीमेल्स में होते हैं, उसमें ऐसे एलील्स पाई जाती है कि वो जो कोविड-19 को रेजिस्ट करती है। मुझे अब आपसे थोड़ी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी को संक्षेप में शेयर करना है। Dear friends, if we look at the established medical physiology and the scientific reports made by noted journals of the world, SARS-CoV-2 targets airway epithelia, alveolar epithelial cells, vascular endothelial cells, and macrophages in lungs. Angiotensin converting enzyme 2 acts as a host target receptor, and it is highly expressed in lungs, heart, esophagus, ileum,
kidney, and bladder. Macrophages and monocytes respond first and release cytokinins and prime adaptive T and B cells. And if we look at the level of cytokinins, you'll find the increased level of interleukin 1, 2, 6, 7, 10, and the increased level of chemokinin just like IP10 and granulocyte clone stimulating factor, tumor necrosis factor, and the inflammatory markers just like C-reactive protein, CD14 and 16 cells, and moreover there will be decreased level of T cells, B cells, natural killer cells, CD4 cells. Interestingly, all they are the robust immunomarkers. And as I told you earlier, coagulopathy, low platelet counts, and the elevated level of D dimers are the also biophysiological markers at the severity of COVID-19 infection. There was one study in China that covers the 1257 health workers working in 34 different hospitals and who are especially engaged in nursing, diagnosis, treatment of the COVID-19. And this research interestingly reports that the healthcare professionals who are engaged in these services are quite prone to experience the mental health problems like insomnia, stress, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, poor quality of life. Let me talk about the preventive measures and coping strategy. That is the main concern of my today's deliberation. What may be the integrative approach, coping strategy to cope with this pandemic attack? Dear friends, let me speak a little bit about the yoga. Yoga is an optimal way of living that promotes the health by inducing positive effects to immune, cardiopulmonary, neurological, and energy pathways. People mistakenly perceive yoga as some sort of breath regulation, meditation, somatic manipulation, but in reality, yoga is the holistic approach, and it covers the practices of social and self-discipline like physical distancing and social isolation, somatic manipulation, pranayam, what we say, breath regulation in scientific term, sensory control, mind concentration, meditation, and extrasensory perception, leading to real knowledge of self and the universe, resulting in self-realization and mitigation of all miseries. In reality, the integral practice of yoga helps to mitigate all miseries of the human life and to inhibit the cycling chain of the birth and rebirth. Dear friends, I was just looking at the database to find out some research articles that highlighting the effectiveness and efficacy of yoga and allied mind-body practices to prevent and manage the COVID-19, but till the date I could not find. So let me speak on the basis of established medical physiology, how yoga practices and the integrative traditional measures help to prevent and combat the COVID-19. Interestingly, the severe acute respiratory distress syndrome and the other biophysiological markers that happen at this intense stage of COVID-19 so that there is impaired cardiopulmonary functions. I mean the breathlessness, low level of the oxygen, low platelet count, elevated D dimers are quite responsible to cause the death. Interestingly, if somebody practices yoga on regular basis, it helps to enhance the robust immunomarkers like T cells, B cells, CD4 cells, and yoga also enhances the telomere length
and the increase of telomere length is the potential indicator of the youthfulness and the age reversal process. And the persistent practice of yoga helps to decrease the inflammatory markers just like IL, interleukin 1, 2, 6, 7, 10, C-reactive protein, and interestingly, these are the markers that get elevated during the COVID-19 infection. So if we look at the established medical physiology, the effect of COVID-19 infection and yoga practice is quite converse. They are in opposite direction. The most crucial point to note and quote is the robust immune system is one of the most essential criteria to combat over the COVID-19 infection. And the regular yoga practice is immunomodulator, cardiopulmonary health booster, and overall health promoting. Moreover, let me speak a little bit about the established positive effects of regular yoga practice. Dear friends, regular yoga practice enhances the lung capacity. मैं एक बात यहाँ पे बहुत सामान्य भाषा में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एडल्ट मेल और फीमेल में देखा जाए तो एडल्ट मेल की टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर करीब होती है और एडल्ट फीमेल की लगभग 4.2 ml होती है। हम सामान्य अवस्था में जो श्वास लेते हैं, हम केवल 500 ml श्वास को ही अंदर लेते हैं। तो 500 ml श्वास में से लगभग 150 ml श्वास हमारे एयरवेज को फिलअप करने में ख़त्म हो जाता है और 350 ml इवेंचुअली एल्वुलाई तक पहुंचता है और जिसकी वजह से हमारी फेफड़े की 80% एल्वुलाई इनएक्टिव रहते हैं। तो मज़े की बात यहाँ पे एक और है कि हमारी फेफड़े की स्थापित क्रिया विज्ञान ऐसी है कि जिस भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है उस भाग में ब्लड की सप्लाई भी अच्छी होती है। अगर लंग्स के किसी भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं है, कम है, तो ब्लड की सप्लाई भी कम। तो आप एक बात को यहाँ पे नोट करिए कि हम सामान्य अवस्था में अपने फेफड़े को सामान्य शोषण में 80% निष्क्रिय रखते हैं। अगर आप प्राणायाम जैसे योगिक क्रिया में जो श्वास को लेते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, तो आप 500 जो टाइडल वॉल्यूम है उससे अतिरिक्त 3100 ml ज़्यादा ईयर ले सकते हैं। यानी वी कैन इनहेल 3100 ml more air in addition to tidal volume during the deep breathing exercise as in case of भस्त्रिका प्राणायाम। और ये अमाउंट फीमेल में थोड़ा कम होता है। अगर एडल्ट फीमेल डीप ब्रीदिंग करती है तो टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त लगभग 1900 ml ईयर ज़्यादा अंदर जाता है। तो दोस्तों, गहरी श्वास प्रश्वास की आपने महत्ता समझ लिया होगा कि सामान्य अवस्था में हमारे फेफड़े में केवल 350 cc एयर जाती है। अगर हम गहरी श्वास लेते हैं, हम एडल्ट मेल हैं तो 3100 ml जाता है, अगर हम फीमेल हैं तो 1900 ml जाता है। दैट हेल्प्स द इंक्रीज्ड डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, and the increased diffusion of oxygen into blood is one of the most essential criteria to get rid of from the COVID-19 infection. इसके अतिरिक्त जो COVID-19 इन्फेक्शन की वजह से कार्डियक फंक्शन इम्पेयर हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। एनिमल मॉडल में एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च ये कहती है कि हमारी ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन और बल्ब की वजह से हमारे मस्तिष्क में SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है और COVID-19 की जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है उसके वजह से हमारी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऑल्फैक्टरी एरिया है वो प्रभावित हो सकता है और वी मे हैव द डिमिनिश्ड olfactory sensory power, right? And moreover, the persistent practice of yoga helps to stimulate the secretion of tranquilizing and pain-killing neurohormones like beta endorphin, enkephalin, GABA, and of course serotonin, and most recently
the anandamide is one of the newly discovered tranquilizing and pain-killing neurohormone, and these are the established the positive effects of regular yoga practice. दोस्तों, आपको मैं कोविड-19 के समग्र समाधान के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मैं इसको 4 भाग में डिवाइड करूँगा. If we look at the human existence, we have 4 major dimensions: physics, mind, heart and spirit. मानव अस्तित्व के 4 मुख्य आयाम है: शरीर, मन, भावना, आत्मा. अगर हम किसी भी आदि व्याधि की समग्र समाधान की बात करते हैं तो हमें ये चारों महत्वपूर्ण एंगल से देखना चाहिए. दोस्तों, सबसे पहले मैं बायोलॉजिकल मेजर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, और ये सभी जो फैक्टर्स हैं इसको मैं योगा थेरापी के अंतर्गत शामिल करना चाहूँगा. If we look at the latest concept of yoga therapy, it has 6 indispensable factors: body, breath, diet, mind, lifestyle and environment. These are the 6 indispensable factors of yoga therapy as reported in scientific journals and accepted by contemporary yoga masters and medical community. हम योग थेरापी की बात करते हैं तो हम ये 6 चीज़ को शामिल करते हैं. तो दोस्तों, शरीर के जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अभ्यास के अंतर्गत अगर हमें देखना होगा तो आसन इसमें आता है, उपवास आती है, पंचतत्व साधना आता है और शुद्धि क्रिया आती है. डाइट के अंतर्गत हम जो हमारी रेगुलर डाइट है उसके पैटर्न, डाइटरी हैबिट और न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करेंगे. और डाइट में हम इंटरेस्टिंगली योग, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के हिसाब से डाइट की क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग्स की बात करेंगे. इसके अतिरिक्त आई विल एम्फसाइज ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स. These are the dietary supplements to be ingested to boost the innate immunity and acquired immunity to fight with the COVID-19 infection. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी बात डाइट और न्यूट्रास्यूटिकल्स से शुरू कर लेता हूँ. As subsequently publicized by Ministry of Ayush and the Honorable Acharya Balakrishna Patanjali Research Institute, the Swasari Ras, the tablet of pure ashwagandha extract, tablet of pure giloy extract, tablet of pure tulsi extract and anu tel are quite effective to prevent and manage the COVID-19 infection. पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रकाशित ऑनलाइन रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 2 बूंद अनु तेल अपने दोनों नासिका में डालें और उसके आधी घंटे बाद, यानी ब्रेकफास्ट से आधी घंटे पहले और अनु तेल को नाक में डालने के आधी घंटे बाद स्वासारी रस के 2 टैबलेट गुनगुने पानी से ले लें. और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद 2 टैबलेट गिलोय एक्सट्रैक्ट के लिए, 1 टैबलेट अश्वगंधा के लिए, 1 टैबलेट प्योर तुलसी के लिए, और ये आपको सभी गुनगुने पानी से लेना है. और इसी तरह से आप सायंकालीन डोज में 2 टैबलेट स्वासारी रस अपने डिनर से पहले ले लें और 2 टैबलेट गिलोय एक्सट्रैक्ट, 1 टैबलेट अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, 1 टैबलेट प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट और डिनर के बाद लिक्विड वाटर से लें. तो आपको इसके प्रिवेंशन में और मैनेजमेंट में सहयोग मिलेगा. दैट हैज़ बीन क्लेम्ड ऑनलाइन एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल to prove the preventive and therapeutic effects of this Ayurvedic formulation by randomized clinical trials, and we are very optimistic to get it published in good journals shortly. इसके अतिरिक्त दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कंकॉक्शन के बारे में बड़ा जोर दिया है. अश्वगंधा, अगेन गुडुचे यानी गिलोय, तुलसी, मुलेठी, जिंजर, सिनामन की हम काढ़ा बनाएं और इस काढ़े को हम दिन में 2 बार ले लें तो ये हमें प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सहयोग करता है. कुछ बातें मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में करना चाहता हूँ. यह हमारे होम रेमेडी के पार्ट हैं.
लेकिन मैं कुछ इसमें साइंटिफिक पॉइंट आपसे जोड़ के बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 को जीतने के लिए ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। If we look at the established medical anatomy and physiology, there are no more tangible organs of the immune system. जैसे आप कान को देख सकते हैं, आँख को देख सकते हैं और शरीर के अलग अलग सिस्टम के संबंधित ऑर्गन्स को देख सकते हैं, वैसे आप इम्यून सिस्टम को नहीं देख सकते हैं। But the most important point is the 80% immune system of the human body depends on the gut health. आपकी पाचन तंत्र की स्थिति कैसे है, 80% आपकी इम्यून सिस्टम उसमें निर्भर करती है। 80% ऑफ द इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड बाय द ह्यूमन गॉट। तो अगर हमारे पाचन तंत्र ठीक है तो इम्यून सिस्टम सही रहेगा और हम कोविड को जीत पाएंगे, झेल पाएंगे। तो इसके लिए क्या नुस्खे हो सकते हैं? हम दही ले लें। कर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोबायोटिक्स, and probiotics are the group of bacteria, the group of useful bacteria in the human gut, and the curd and the probiotics contained within it has the capacity to empower gastrointestinal and urogenital health. और दूसरी बात मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ न्यूट्रास्यूटिकल्स में, वो विटामिन डी और विटामिन ए की है। दोस्तों, जब सार्स कोविड-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जो कोविड-19 का मेन वजह है, मेन पैथोजन है, उससे पहले सबसे पहले हमारे शरीर की जो डिफेंस लाइन काम करती है उसका नाम है इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सबसे पहले सक्रिय होती है। तो जो विटामिन डी और विटामिन ए है ये हमारी इनेट इम्यूनिटी को एम्पावर करती है, और विटामिन डी और विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो हम ये कोविड-19 को कोप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक आपके बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए एक रिसर्च कोट करना चाहूँगा। जब 2003 में सार्स का आउटब्रेक चाइना में हुआ तो साइंटिस्ट ने ऑटोप्सी की, जो लोग मरे हुए थे उनके बॉडी को डिसेक्ट किया, देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके शरीर में डिफिशेंट थी। जो लोग बच गए, सरवाइव कर गए उनके शरीर, और जो लोग मर गए उनके शरीर में कौन सी ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल्स है उसमें ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंगली ये पाया गया जो लोग मर गए थे उनमें ऑटोप्सी के बाद ये देखा गया कि उनके शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी थी, और जो लोग सरवाइव कर गए थे उनमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा थी। तो ये इस बात को सिद्ध करती है कि एंड इंटरेस्टिंगली इन इंडियन पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ वी आर हैविंग द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, एंड लेट अस ट्राई टू इंटेक द डाइटरी आइटम्स that supplement the vitamin D and cultivate the habit of being exposed to the rays of early morning rising sun. That is one of the potential natural source of supplying vitamin D in the human body. And what about the vitamin A? दोस्तों, यहाँ पे विटामिन ए के रोल को मैं साइंटिफिक वे से और बताना चाहता हूँ। जब फिर ये सार्स का लगभग 2 वर्ष के बाद चाइना में आउटब्रेक हुआ, लगभग करीब 2005-06 में, फिर साइंटिस्ट ने इस स्टडी को रेप्लिकेट किया, देखा कि ये विटामिन डी का ही सफिशेंट होना कोविड के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त है क्या, लेकिन फाइंडिंग ऐसा नहीं निकला। उसमें यह पता चला कि केवल विटामिन डी नहीं, विटामिन डी और विटामिन ए का बैलेंस लेवल पे शरीर में होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी और विटामिन ए दोनों बैलेंस और ऑप्टिमल लेवल में बॉडी में है तभी हम कोविड-19 को यानी ये सार्स को कोप कर सकते हैं और कोविड-19 को कोप कर सकते हैं। तो विटामिन ए के लिए हम क्या खाएंगे? आई थिंक इफ यू लुक एट द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए, द एप्रिकॉट, खुरमानी, द एप्रिकॉट ऑफ द ऑरेंज कलर एंड द मैंगो इज द सीजनल फ्रूट, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। लगभग इसमें 40% विटामिन ए पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त जो लेहा बेरी हमारे योग संदेश में भी पब्लिश हुआ था, अगर इसके आप
केमिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, कॉस्मेटिक और बायोमेडिकल वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको योग संदेश के पुराने कॉपी को, पुराने इशू को देखना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीबक थॉर्न। इसको आम भाषा में लेहा बेरी कहते हैं। हमारे पतंजलि के फार्मेसी ने इसके पहले एक्सट्रैक्ट भी बनाया था। तो ये जो लेहा बेरी है, इसमें विटामिन सी और माइक्रो एलिमेंट्स, जिंक, ओमेगा 6, ओमेगा 7 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। अगर हमें कहीं इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है, ये ताज़े मिल जाए, इसका एक्सट्रैक्ट मिल जाए, तो ये कोरोना काल में और हमेशा I already let you know that it has highest biomedical and cosmetic value, and the regular use of the extract of the Sibak thorn and its use in raw form is the highly beneficial to make the supply of vitamin A and the several other immunomodulator and bio-enhancing minerals and vitamins। दोस्तों, ये बात तो मैंने इनेट इम्यूनिटी की करी। अगर आप शरीर में, अगर किसी को कोविड-19 हो गया तो इनेट इम्यूनिटी तो पहले काम करती है, अब पहले कोप करने के लिए, उसको रोकने के लिए है। अगर शरीर में हो गया तो, अगर शरीर में हो जाता है तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर फंक्शनल हो जाती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक सहयोग करती है जिंक। और जिंक के लिए हम नेचुरल चीज़ क्या खाएंगे, और मैं यहाँ पे किसी ब्रांड के नाम नहीं लूँगा। जिंक के लिए हमारी जो घरेलू नुस्खे क्या है, इसके लिए हमें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं साइंटिस्ट की तरह कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू कैन चूज़ द सेल्फ फिश। जो सेल्फ फिश है, ये समुद्री फिश है, इसमें विटामिन जी ज़्यादा हो, जिंक ज़्यादा होता है, रिसर्च ये कहता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको काजू खाना चाहिए, और आपको पिस्ता खाना चाहिए, और आपको बादाम खाना चाहिए। ये जिंक के अच्छे स्रोत हैं, और दिस आर द वेजिटेरियन ऑप्शंस टू सप्लाई द जिंक इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये मैंने आपसे बात करी, और इसके अतिरिक्त जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड की। मैंने पहले ही पैथोफिजियोलॉजी में बता दिया, जिन लोगों की कार्डियक फंक्शन इम्पेयर्ड है, जो हाइपरटेंसिव हैं, वो लोग कोविड-19 के प्रभाव से ज़्यादा फैटल स्थिति में जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड के नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड इसके गुड ऑप्शन हैं। और इसके अतिरिक्त जो करकुमिन हल्दी में पाई जाती है, दैट इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, एंड दैट इज़ फाउंड इन टर्मेरिक, वो हल्दी में पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको जो हल्दी को लगभग 1 टीस्पून हल्दी साम्यकालीन यानी आपके बेड टाइम में दूध में मिला के लेना चाहिए। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक सत्यता है। करकुमिन को ऑब्जर्व करने के लिए फैट चाहिए, दूध में फैट होता है। अगर आप अकेले हल्दी खाएंगे तो आपके हाथों में ऑब्जर्व नहीं होगा, इसीलिए आपको दूध में मिला के हल्दी लेना चाहिए। यहाँ पे मैं 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप भोजन के उपरांत 1 कली लहसुन का ज़रूर लें। लहसुन को लेने का तरीका यह है कि लहसुन के 1 कली को आप 4-5 टुकड़े में काटें और उसको 5 से मिनट एयर करें। 5 से मिनट उसको हवा में रखने से उसमें एक पोटेंशियल एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड बन जाता है, जिसका नाम है एलिसिन। यानी एलिसिन नाम का एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड लहसुन में बन जाता है। You may be order sensitive, so I advise you to swallow the cut pieces of 1 clove of garlic with water। और लगभग ये प्रयोग आप दिन में 1 बार करें, 25 से 30 दिन तक करें, तो ये आपके जो गट में इम्यूनोसप्रेशर पैथोजेंस है उसको इनहिबिट करता है, और साथ साथ में ये एंटीवायरल भी है। इसके पास एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। दोस्तों, अदरक के काढ़ा बना के आप लें। अदरक एंटी एजिंग का काम करता है, एंटीवायरल है, और अदरक ब्लड को पतला भी करता है। इंटरेस्टिंगली,
जब कोविड-19 की इन्फेक्शन इंटेंस हो जाती है तो ब्लड के क्लॉटिंग से लोग मरते हैं। ये दैट इज़ द इस्टेब्लिश्ड मेडिकल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो जिंजर को आपको लेना चाहिए। जिंजर को 1 चम्मच जिंजर को कद्दूकस करके आप काढ़ा बना के ले लें। दोस्तों, मैं योग के बारे में कुछ बातें और करना चाहता हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया, द सेल्फ एंड द सोशल डिसिप्लिन ऑफ योग जस्ट लाइक physical distancing and social isolation are accepted as the best preventive measures by the governments and the healthcare regulatory systems of the world। तो मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि योग तो पहले से इस बात को करता है। अब आसन में आप देखना चाहें तो आप सूक्ष्म व्यायाम और परम पूज्य स्वामी जी द्वारा रेकमेंडेड जो 12 आसनों की श्रृंखला है, मंडूकासन 1 and 2, शशक आसन, वक्रासन, गोमुख आसन, मकरासन, भुजंगासन 1, 2 and 3, सलवासन 1, 2 and 3, मर्कटासन 1, 2 and 3, पवन मुक्तासन 1 and 2, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रियासन और सूर्य नमस्कार। That may be the optimal flow of postural practice. Let me repeat once more: loosening and energizing series, and the 12 health promoting postures as recommended by His Holiness Swamiji, followed by the practice of sun salutation, and that may be the optimal package for general common public। दोस्तों, यज्ञ का बड़ा रोल है। यज्ञ में आप स्वाभाविक तरीके से यज्ञ करते हैं। पतंजलि योगपीठ ने, पतंजलि दिव्य फार्मेसी ने आयुर्वेद लिमिटेड में आस्था हवन सामग्री बनाया है, और ये हवन सामग्री अपने आप में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण से युक्त है। ये हवन सामग्री को लेके आप जो स्वाभाविक रूप से यज्ञ की प्रक्रिया रोज करते हैं, उसमें 3 और वैदिक हिम्स को जोड़ लें। आई एडवाइज यू टू एड 3 more वैदिक हिम्स एड्रेसिंग द आदित्यगण, सूर्य एंड द वैश्वानर। ये 3 को ऐड करके आप इस हवन सामग्री से स्वाभाविक यज्ञ प्रक्रिया के अंतर्गत तांबे के कुंड में प्रातकालीन सूर्योदय के दर्शन करते हुए हवन करेंगे, तो इससे आपके बायोइम्यूनिटी, साइकोइम्यूनिटी और साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोविड-19 इन्फेक्शन को इस्टेब्लिश्ड मेडिकल फिजियोलॉजी है। इसके अतिरिक्त इसके प्रभाव से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे साइकोलॉजिकल कोमोर्बिडिटीज भी डेवलप होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेट मी एम्फसाइज वंस मोर, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ यज्ञ बाय यूजिंग द आस्था हवन सामग्री in usual way and by adding 3 more Vedic hymns addressing Adityagan, Surya and Vaishnar may be the best preventive option. Let me talk about the pranayam. प्राणायाम में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा जो रेकमेंडेड 8 प्राणायाम की श्रृंखला है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। These are the 8 health promoting and immunomodulating breath regulation practice as recommended by His Holiness Swamiji, and you may have the habit of regular practicing them. If not, you please start the habit of practicing them. दोस्तों, ऑफकोर्स मैं योग में बंद मुद्रा की बात करूं तो जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूलबंधा का अभ्यास, ये 8 प्राणायाम के अभ्यास के दौरान हो ही जाता है। अगर आप कर पाते हैं तो आपको महामुद्रा के अभ्यास करनी चाहिए। और ध्यान के बारे में मैं बात करूंगा तो मैं ज़रूर आपको ये सुझाव दूंगा, अब आपने नाभि में प्रातकालीन सूर्योदय का ध्यान करें। Because the navel is accepted as the nucleus of the somatic body in the yoga system. Even if you look at the established medical physiology, umbilical cord gets connected to the navel and that supplies the food and nutrients to the human fetus. And ये हमारी जो शरीर में सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, उनका नेटवर्क नाभि में होता है और नाभि स्थूल शरीर का केंद्र है। नाभि में प्रातकालीन सूर्य के ध्यान करने से इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी जो सोमैटिक सिस्टम एम्पावर होता है।
तो मैं आपको इसकी सुझाव देना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त आप वसुधैव कुटुंबकम के भाव से आत्मवत् सर्वभूतेषु और परनारी परदादेशु परदर्वेशु लोष्टवत् वसुधैव कुटुंबकम भाव से प्रार्थना करें। अपने हृदय चक्र से पूरे विश्व वसुधा को दुआ दें। इससे आपकी हृदय चक्र की अच्छी हो जाती है और इससे क्राउन चक्र भी आपका बूस्ट होता है। तो दीज आर दी सम एक्स्ट्रा सेंसरी प्रैक्टिसेस ऑफ एनहांसिंग साइको एंड स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। मैं स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की बात क्यों कर रहा हूँ? ये आज के हालात ऐसे बन गए हैं, जिस व्यक्ति के अंदर साइको इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम है, वो गम को झेल नहीं पा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रहा है, आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो जो इनके इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन है, उसके साथ उसको झेलने के लिए और उसको समन करने के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल योगिक प्रैक्टिसेस भी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। और दोस्तों, निसंदेह दान का मतलब समय का दान, ज्ञान का दान, अर्थ का दान और निस्वार्थ भाव से सेवा हमारी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करती है। और ये जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमारी शरीर अच्छी हो जाती है। मैं एक बात यहाँ साइंस के आधार पे बताना चाहूँगा। इफ वी आर हैविंग द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड ऑप्टिमल थॉट्स that directly affects the hypothalamus. Hypothalamus determines the pituitary secretions, and the pituitary secretions, they governs the most metabolic activities and the physiological functions of the human body. तो दोस्तों, मन का अच्छा होना, भावना का अच्छा होना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका प्रभाव सेकेंड के भर पूरे शरीर में पड़ता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और लास्ट में मैं आपको कुछ एक दो बात और बताना चाहूँगा। आप भोजन के बाद लौंग को लेना शुरू करें। लौंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। लौंग दुनिया की एक ऐसी डाइटरी आइटम है जिसका ओराक वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। आइए टेक्निकल टर्म को मैं एक बार आपको फुल फॉर्म में बता देता हूँ। ओराक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। लौंग एकमात्र दुनिया का ऐसा एडिबल आइटम है जिसकी ओराक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है और इसकी जर्मिसाइडल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आप काढ़े में भी ले सकते हैं। काढ़े लेने के बाद जो लौंग बच जाता है उसको आप चबा के ले लें, और या तो आप भोजन के बाद 2 लौंग खाने की आदत रखें। Let me repeat once more. The clove is the only one food item having the highest ORAC value among all edible items of the world. और लास्ट में आपको क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो बात बताना चाहता हूँ। We have to strictly avoid the immunosuppressing diets. What they are? Sugar, चीनी और noodles, polished rice, मैदा, bottle and canned foods. These are the immunosuppressing and immunocompromising diets, and moreover, and stress is one of the causative factor to suppress the human system. तो इसलिए आप खुश रहें, योगाभ्यास करें, यह आहार के चीज़ को पालन करें, खूब सोएं, आप मस्ती से सोएं कि ह्यूमन सिस्टम को रिकवर करने के लिए, शरीर के डिजनरेशन को रिकवर करने के लिए सोना ज़रूरी है। अगर आप पूरी नींद नहीं सोते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज हो जाता है। तो आप फुल नींद सोएं और समय से सोएं, समय से जाएं, गहरी नींद लें और इन चर्याओं की पालना करें और योगाभ्यास करें। योगाभ्यास की भी प्रारूप मैंने आपके साथ पहले शेयर कर ली। और स्ट्रेस और ये जो इम्यूनोसप्रेसिंग डाइट है इनको आप अवॉइड करें तो हम कोविड-19 से बच सकते हैं। अगर ये हमारा दोस्त बन के हमारे साथ आ भी गया तो हम इसको आसानी से झेल सकते हैं। तो ये कोविड-19 के संबंध में कुछ इसको समाधान के उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं अपने डेलीब्रेशन को यहाँ पे समापन करता हूँ। Dear friends, I have to express my sincere thanks and gratitude to respected Swami Pramarth Dev and his team for organizing this wonderful program
platform of the University of Patanjali, and for providing technical assistance and motivation to me to share my some integrative ideas to prevent and manage the COVID-19. Last but not least, I have to express gratitude to all connected viewers for their kind attention and time. I wish you all the best for good health and bright future. Thank you very much. Om Shanti.